Hello learners, welcome back to my channel Learn and Grow with Ananya Mishra. Learn today, grow tomorrow. So after a really long time मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर्स के लिए, and this time it's for class 10th students. This time and from now on I'll try and be more consistent with my videos, and I'll upload class wise videos. So this time I'm starting with class 10, the first chapter, chemical reactions and equations. Yes, so this is the topic that I am going to start with, and बहुत अच्छे तरीक़ों से मैंने एक्सप्लेन करने की इस पूरे वीडियो में कोशिश की है, with wonderful examples, beautiful examples, and yeah, so बहुत ही interactive class होने वाली है, lots of examples and lots of questions for the learners to solve and try themselves. So yeah, let's start the video. So before starting chemical reactions and equation, let us understand the difference between physical versus chemical changes. So I think class 7th, class 8th में आपने physical versus chemical changes के बीच में differences क्या होते हैं वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, but let's give a quick revision to it. फिज़िकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें आपका कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जैसे कि आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, इट्स अ फिज़िकल चेंज, एंड कोई नया सब्सटेंस उसमें नहीं बना, क्योंकि क्या है, आइस जो था वो भी वाटर का एक प्रोडक्ट है, फ्रीज्ड फॉर्म जो होता है, फ्रोज़न फॉर्म जो होता है, एंड वो मेल्ट होकर वाटर ही बना, एंड इट्स ऑल्सो रिवर्सिबल, क्योंकि आप वाटर को वापस से फ्रीज़ करके आइस बना सकते हो. सो दिस इज़ कॉल्ड योर फिज़िकल चेंज विच इन्वॉल्व्स टेम्पररी ट्रांसफॉर्मेशन. And there is always an energy change where little or no energy is absorbed or released in the physical change. So examples can be melting of ice, or dissolution of sugar in water, or boiling of, wherein if we see chemical change is completely opposite to your physical change, where every time a new substance is formed, a completely new chemical composition के साथ और new properties के साथ, और ये changes irreversible होते हैं, और इनमें जो energies produce होती हैं, there is a significant amount of heat that is produced, light may be produced, or sound may be produced or absorbed. So this is a permanent transformation. So examples can be digestion of food, wherein you break down the complex substances present in food into simpler products, and burning of paper, rusting of iron. All these are examples of chemical change. So this was all about the difference between physical and chemical change. So now we move on to our next slide, which says now let us know about what is a chemical reaction. हम बात कर रहे हैं chemical reaction की. चलो जानते हैं कि chemical reaction आखिर होता क्या है. तो ये वो reaction होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा substances, जिनको हम reactants कहते हैं, वो react करते हैं आपस में और बनाते क्या हैं, एक या एक से ज़्यादा substances, जिनको हम कहते हैं products, with entirely different chemical properties. Now understand, कुछ substances आपस में react करते हैं, आपस में उनके reaction होता है, जिस दौरान उनके बीच में जो bonds होते हैं वो break होते हैं. Every substance has their own bonds, so वो break होते हैं and new chemical bonds बनते हैं और new substances बनते हैं with new chemical properties. So this is what you call a chemical reaction. Now let us understand that what are the changes that we observe in any chemical reactions. कुछ अगर chemical reactions होते हैं तो कुछ changes हमें देखने को मिलते हैं, जो कि है जैसे सबसे पहले change in color. इसमें आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा कि कॉपर सल्फेट टर्न्स ग्रीन विद आयरन नेल, या जब रस्टिंग ऑफ आयरन होता है कोई भी आयरन का सब्सटेंस, तो वो ब्लैक होता है. जब रस्ट हो जाता है तो उस पर एक ग्रीन लेयर या रेड लेयर जम जाती है. तो दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेंज इन कलर. देन देयर इज़ इवोल्यूशन ऑफ गैस. Always in a chemical reaction, not always but most of the times, there is a
evolution of gas. Example, when zinc reacts with hydrochloric acid, then there is the release of hydrogen gas. Then there is change in temperature in a reaction that we observe. So on the basis of that, we tell a reaction that it is an exothermic reaction or an endothermic reaction, for which we will study in the later slides. So exothermic is the reaction where heat is released, and endothermic reactions are those in which heat is given to perform those reactions. Then there is formation of precipitate. Now what is precipitate? जब भी किसी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, जो कि लिक्विड में मोस्टली बनता है, वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता है, वो सेटल डाउन हो जाता है, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट. सो कुछ रिएक्शंस में हमें प्रेसिपिटेट भी देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ठीक है. सो ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस में. कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हों, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें देखने को मिलती हैं. Now moving on to the next slide, which says properties of chemical reaction. Now this is very interesting. हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि chemical reactions अगर होते हैं तो उनकी क्या properties होती हैं. Number 1 is mass conservation, जिसके basis पे हम आगे balancing भी सीखेंगे. तो mass conservation क्या कहता है कि total mass of reactants का जितना mass होता है वो बराबर होता है products के total mass से. इसका मतलब ये हुआ कि जो मैटर होता है वो ना ही क्रिएट किया जा सकता है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. तो जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो इसी प्रिंसिपल पे करते हैं कि जितना मास हमारे रिएक्टेंट्स का है उतना ही मास हमारे प्रोडक्ट्स का भी होगा. Second property है which is more or less related to the first property. It says that कि atoms they are never created or never destroyed. तो वही एटम्स जो रिएक्टेंट्स में होते हैं वो रीअरेंज होकर ही नया सब्सटेंस बनाते हैं. ऐसा नहीं होता है कि प्रोडक्ट में एंटायरली कोई डिफरेंट सब्सटेंस आपको देखने को मिल जाएगा जो रिएक्टेंट में था ही नहीं. तो जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl. सो यू कैन सी कि रिएक्टेंट साइड में भी हाइड्रोजन और क्लोरीन है एंड प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन और क्लोरीन है. तो इनके बीच में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, बट जो एटम्स हैं वो सेम रहते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी की एनर्जी ऑल्टरेशन. मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन में देयर इज़ सम एनर्जी चेंज इन्वॉल्व्ड. तो जैसा हमने भी इसके पहले पढ़ा था जो चेंजेस ऑब्जर्व्ड में, तो उसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की हमने बात की थी कि एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है एंड एंडोथर्मिक में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है. एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक का कंबशन, जब कुछ भी चीज़ हम जलाते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है. एंड फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसमें सनलाइट इन्वॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर साथ में मिलके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं, तो दैट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो ये 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मास कंजर्वेशन, एटॉमिक रीअरेंजमेंट एंड एनर्जी ऑल्टरेशन. अब हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में तो बहुत अच्छे से समझ लिया और अब हम जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है. मैथ्स में हमने इक्वेशन पढ़ा है ना कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab. तो वो एक इक्वेशन फॉर्म होता था. पॉलिनॉमियल्स में हमने पढ़ा है ax² + bx + c. इट्स अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन. उसी तरह से केमिस्ट्री के टर्म्स में जब हम किसी केमिकल रिएक्शंस को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं जिसमें हम उनको केमिकल फॉर्मूलाज और सिंबल्स देते हैं, तो वो हमारी बन जाती है केमिकल इक्वेशन. सो इट्स अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वेयर हम जिन सब्सटेंस का नाम बोल रहे हैं जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, जब उनको हम एक सिंबल दे देते हैं कि H2 + Cl2, सो दिस इज कॉल्ड योर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. और जो प्रोडक्ट बनता है अगेन उसको भी हम एक केमिकल फॉर्मूला देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन. एग्जाम्पल के तौर पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने एक वर्ड इक्वेशन दी है, मैग्नीशियम + ऑक्सीजन गिव
गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसी का स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। मैं स्केलेटल क्यों यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि अभी ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। जब कोई रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होती है तो उस रिएक्शन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जब मैं इसे बैलेंस कर दूँगी तब ये हो जाएगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे, पर फॉर नाउ उसी इक्वेशन को हमने वर्ड और सिंबल्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। नाउ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में हम जान चुके हैं कि एरो के लेफ्ट साइड में जो भी सब्सटेंस हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और एरो के राइट साइड में जो भी सब्सटेंस आते हैं, कंपाउंड्स आते हैं या जो भी चीज़ें आती हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो लेफ़्ट साइड में होते हैं रिएक्टेंट्स एंड राइट साइड में होते हैं आपके प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आपके कुछ मैंने केमिस्ट्री लैब फ्लास्क्स दिए हैं। जब आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे कभी देखने तो आपको ये सारे फ्लास्क्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो दिस इज़ फॉर जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड कि इतने वैरायटीज़ के फ्लास्क्स होते हैं। पर अभी के लिए आपको यही जानना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो नाउ केमिकल इक्वेशन में मैंने आपको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया था और मैंने बोला था कि वो बैलेंस्ड नहीं है। तो ऐसा क्यों ज़रूरी है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड होना चाहिए? नाउ इफ़ यू रिमेंबर, जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस की, तो हमने वहाँ पे मास कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात की थी। तो उसमें according to Lavoisier's law, mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. ये होता है law of conservation of mass, जिसका मतलब ये हुआ कि total number of atoms of each element on the reactant side must equal the total number of atoms in the product side. तो जितने number of atoms reactant side में हैं उतने ही नंबर ऑफ़ एटम्स किसी एलिमेंट के या उस कंपाउंड के प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। तो अनबैलेंस्ड अगर कोई इक्वेशन है तो उसको हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। अब बैलेंस जो है वो जो भी हम बैलेंसिंग करते हैं दैट इज़ अचीव बाय एडिंग अप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स टू द एलिमेंट और द कंपाउंड जो बनता है आफ्टर रिएक्शन या सब्सिक्वेंट जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऐड करते हैं और फिर बैलेंसिंग करते हैं जो हम आगे सीखेंगे। तो कोई भी इक्वेशन को जब हम बैलेंस कर रहे हैं दे शुड फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच सेज दैट मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स कि जितने नंबर ऑफ एटम्स किसी रिएक्टेंट्स में हैं किसी एलिमेंट के उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। सो दिस इज़ वाई वी डू the balancing, and that is why an unbalanced equation is called a skeletal equation. skeletal equation क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हड्डी है, तो उसको हम स्केलेटल बोलते हैं, स्केलेटल पार्ट्स बोलते हैं। जब उस पर हमारे स्किन का, हमारे मसल्स का जब पूरा एक कवर क्रिएट हो जाता है तब हम कहते हैं कि नाउ इट्स अ कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर भी हम इसको स्केलेटल इक्वेशन कह रहे हैं, क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। नाउ सीखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते कैसे। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज़ सब लोग ध्यान से देखना और इसको समझना, क्योंकि इस पूरे वीडियो के एंड में मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए हैं टू डू इट योरसेल्फ। तो आप अभी इसको अच्छे से समझ लो ताकि आप बाद में उन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाओ। तो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड फॉर बैलेंसिंग योर इक्वेशंस, ठीक है। तो पहला आपका स्टेप है ऑब्वियसली यू राइट डाउन द स्केलेटल इक्वेशन वेयर इन आई हैव यूज्ड एन एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं एंड इट इज़ रिएक्टिंग टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाता है जो कि राइट हैंड साइड पे हम लिखते हैं।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ एटम्स को काउंट करना है। अब ये आप एक रफली टेबल भी बना सकते हो, और नहीं तो आप जस्ट रिएक्टेंट्स के नीचे नीचे भी आप नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करके लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे टेबल इसलिए बनाई है ताकि आपको बेटर वे में अंडरस्टैंड हो सके। नाउ आप ऊपर देख सकते हो कि मैग्नीशियम के पास कितना एटम है, ओनली 1, और रिएक्टेंट के साइड में कितना है, 1। ठीक है, रिएक्टेंट में भी Mg सिंगल लिखा हुआ है, प्रोडक्ट में भी Mg सिंगल लिखा हुआ है। ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट के साइड में है 2, देयर इज 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एंड प्रोडक्ट साइड में हमें कितना ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, ओनली सिंगल ऑक्सीजन। ठीक है, सो नाउ दिस इज कॉल्ड अ skeletal chemical equation because it is not balanced. This is not following the law of conservation of mass. अब हम क्या करेंगे, पहले हम प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन को डबल करेंगे। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट साइड में पहले 2 लिख दिया। अब प्रोडक्ट साइड में 2 लिखने से क्या हो गया कि हो गया कि अब मैग्नीशियम भी हमारा क्या हो गया, डबल हो गया, 2 atoms of magnesium भी हो गया because it is combined magnesium oxide. So when you are adding 2 to oxygen to balance the number of oxygen atoms, so ultimately आपका मैग्नीशियम भी डबल हो जाता है। तो जब आपने यहाँ पे मैग्नीशियम को डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, 2 एटम्स कर दिए, तो आप रिएक्टेंट में भी क्या कर दोगे, मैग्नीशियम को डबल कर दोगे। So now if you write the equation or see the equation, now it is completely balanced wherein every atom is following the law of conservation of mass. अब हम क्या करेंगे, हम उनके स्टेट्स को भी लिख देंगे कि हम जो रिएक्टेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो किस स्टेट में है। मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम इज़ सॉलिड एंड द प्रोडक्ट दैट इज़ फॉर्म्ड इज़ ऑल्सो अ सॉलिड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम वो सिंबल लिख देंगे। अगर और यहाँ पे मैंने आपको कुछ केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं। आप मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इस स्लाइड को छोड़ दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से इसको देख सको कि मैंने कैसे बैलेंस किया है। जो हमारा सेकंड है, हमने फर्स्ट वाली ऑलरेडी कर ली है। सेकंड में हमारा रस्ट फॉर्मेशन की रिएक्शन है वेर इन आयरन इज रिएक्टिंग विद वाटर, Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। सो अगेन हमने इसको कैसे बैलेंस किया है आप उसे देख सकते हैं। आई एम जस्ट पॉजिंग द स्क्रीन फॉर अ मिनट एंड आप इसे देख लो और इसे अच्छे से समझ लो कि किस तरह से हम बैलेंस करते हैं। I'm just leaving the screen for a minute. You just go through it and then we will move on to the next slide. Now let's move on to the next very interesting topic of this chapter, which is types of chemical reactions. अब हमने chemical reactions पढ़ लिया, chemical equation पढ़ लिया, उसे balance कैसे करते हैं वो समझ लिया। अब हम जानते हैं कि chemical reactions कितने type के होते हैं। So there are several types starting with combination reaction. अब आप नाम से समझ सकते हो कि combined हो रहा है यहाँ पे, combination reaction। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे से कंबाइन होते हैं टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट। प्लीज़ माइंड इट कि यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट। एग्जाम्पल जो हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का लिया था उसमें आप देख रहे हो कि 2 रिएक्टेंट्स दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें आप ये भी कर सकते हो A + B gives out AB. So this is your combination reaction. Next is your decomposition reaction. अब ये बिल्कुल उल्टा होता है हमारा combination reaction से। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब डिकम्पोज होना यानी टूटना यानी ब्रेक होना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कंपाउंड ब्रेक होता है इनटू सेवरल सिंपलर सब्सटेंसेस। एक कोई कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो कि ब्रेक डाउन होकर कई सारे सब्सटेंसेस, सिंपलर सब्सटेंसेस बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन सल्फेट यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको हमने हीट किया। नाउ दिस इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हम हीट दे रहे हैं। तो आयरन सल्फेट इज एब्जॉर्बिंग द हीट एंड देन इट इज़ डिकम्पोजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वो डिकम्पोज होकर क्या बनाना है, आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड।
ठीक है, तो ये आपका होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कि आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक होके 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहा है। नाउ नेक्स्ट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ये वो रिएक्शन होता है जिसमें कोई एक रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो किसी कंपाउंड से, उस कंपाउंड में जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसको वो रिप्लेस कर देता है। मान लो आप आयरन और कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करा रहे हो। अब आयरन क्या है? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब ये बात मैं कैसे कह सकती हूँ? क्योंकि ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स बताती है, जिसके बारे में हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है। तो यहाँ पर आयरन और कॉपर सल्फेट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अब आयरन है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, उसने बोला कॉपर भाई हटो क्योंकि मैं सल्फेट के साथ अपना बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, और उसने फट से रिप्लेस कर दिया कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, और खुद आयरन के सल्फेट के साथ बॉन्ड बना के बनाया आयरन सल्फेट, और कॉपर को टाटा बाय बाय। अब इसको समझने के लिए हमें जानना होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स क्या होती है, क्योंकि तभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ पाएंगे। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है कि मेटल्स को हम एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो ये रिएक्टिविटी के आधार पे हम टॉप से बॉटम, मोस्ट रिएक्टिव होता है हमारा पोटेशियम और सबसे कम रिएक्टिव होता है गोल्ड, और उसी बेसिस पे हम ये एक सीरीज़ होती है, ये आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी कि जो टॉप के मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं, जो वाटर और एसिड्स के साथ बहुत ईजिली रिएक्ट कर लेते हैं, वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, जो टॉप आपके 5 होते हैं। बीच में जो होते हैं दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव, एंड जो बिल्कुल नीचे होते हैं जैसे कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड, दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स ईजिली। तो ये एक सीरीज़ होती है, और इसी सीरीज़ के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कोई एक मोर रिएक्टिव मेटल किसी ऐसे सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है जिसमें एक लेस रिएक्टिव मेटल है, तो वो मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा या डिस्प्लेस कर देगा और सॉल्ट बना लेगा अपना, एंड रिमूविंग दैट लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, अब ये लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, जब आप इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को लर्न कर लेंगे तभी आप रिएक्शंस को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह की रिएक्शंस आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिंक और कॉपर सल्फेट को मैंने रिएक्ट करा के दिखाया है, तो इसमें आप देख सकते हो कि जिंक क्या है, वो कॉपर से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, तो नेचुरली वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेगा, रिमूविंग कॉपर। ठीक है, पर वहीं अगर इसका उल्टा हम करें कि कॉपर को जिंक सल्फेट से रिएक्ट कराएं, तो कॉपर है लेस रिएक्टिव, और जिंक सल्फेट क्या है, में जिंक क्या है, वो है हायर इन रिएक्टिविटी सीरीज़, उसके ऊपर है, तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगी, रिएक्शन होगी ही नहीं। और आयरन जिंक से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन जब जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या कर देता है, आपको जिंक को रिप्लेस कर देता है, एंड आयरन खुद उनके साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल, जिसके बेसिस पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो हायर द पोजीशन इन द सीरीज़, हायर इज़ द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़ होता है, और इसी के बेस पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ सकते हैं। ओके, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। वहाँ क्या हो रहा था, एक मेटल जो है वो दूसरे को रिप्लेस कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था फ्रॉम देयर सॉल्ट। पर यहाँ क्या होता है, दो कंपाउंड मिलके रिएक्ट करते हैं और आपस में रिएक्शन करके इंटरचेंज हो जाते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द आयंस ऑफ टू कंपाउंड एक्सचेंज प्लेसेस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। तो उनमें क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। मैंने आपको जनरल पैटर्न भी दिखाया है कि AB प्लस CD गिव्स आउट AD प्लस CB।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए और सी इन्होंने एक अदला बदली कर ली और इंटरचेंज होकर बॉन्ड बनाया नया और बना दिया प्रोडक्ट AD+CB। ये कब होता है, जब कोई प्रेसिपिटेट बन रहा होता है, या जब कोई गैस इवॉल्व हो रही होती है, या जब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि वाटर बन रहा होता है, या जब कोई चेंज इन कलर ऑब्जर्व हो रहा होता है। ठीक है, तो जब भी ये कोई ड्राइविंग फोर्स होगा तभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जैसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करें जिसमें हमने बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से रिएक्ट कराया, तो क्या हो गया, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो बेरियम क्या कर लेगा, सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेगा, और सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाकर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना लेगा। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट का क्या हुआ, वाइट प्रेसिपिटेट बना और सॉल्ट इज अगेन फॉर्मिंग। तो जब भी कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। गैस इवोल्यूशन का क्या एग्जाम्पल है, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एफर्वेसेंस, बबल्स के फॉर्म में। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आपका अगेन एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फॉर्म कर रहे हैं सॉल्ट प्लस वाटर। तो वाटर इसमें फॉर्म हो रहा है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेयर इन व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इस काइंड ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स, इसको हम यूज़ करते हैं टू रिमूव हार्मफुल आयंस। वाटर ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो हार्मफुल आयंस को रिमूव करने के लिए, मेडिसिन्स और केमिकल को बनाने के लिए, डिटर्जेंट, सोप और क्लीनिंग एजेंट्स को बनाने के लिए। तो ये होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट अप वी हैव रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस एक साथ होते हैं। अब उसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होते हैं और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं जिस रिएक्शन में हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हों या हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हों, उस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, जिसमें हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हों और ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हों, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, ये हो रहा है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऑक्सीडेशन के नीचे दिया है कि कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। वेर इन अगर हम रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल देखें तो आप देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर और वाटर। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है कॉपर में, उसने ऑक्सीजन को लूज़ किया। एंड हाइड्रोजन क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और गेन हो रहा है, ऑक्सीजन को गेन करके बना रहा है वाटर। तो यहाँ पर कॉपर हो रहा है रिड्यूस और हाइड्रोजन हो रहा है ऑक्सीडाइज। तो ये एक ही साथ जब ये दोनों रिएक्शंस हो रही हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, वेयर इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, समझ में आ गया सबको रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं। तो ये एग्जाम्पल को हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर कॉपर जो है वो रिड्यूस भी हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। अब हम समझते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आई थिंक इट्स द लास्ट टॉपिक ऑल्सो ऑफ दिस चैप्टर, विच इज़ कोरोजन एंड रैंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, आप सबने सुना होगा अपने आम जिंदगी की भाषा में, जंग लग जाना। तो कोरोजन क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स। आपने देखा होगा कि आपके अगर घर में कुछ लोहे की खिड़कियां हैं या दरवाजे हैं, बारिश के दिनों में उनमें क्या हो जाता है कि लेयर जम जाती है, रेड कलर का हो जाता है या फिर कभी कभी ग्रीन कलर का हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये कोरोजन हो रहा है। कि किसके एक्शन की वजह से हो रहा है, एयर और मॉइस्चर के एक्शन की वजह से हो रहा है।
ठीक है। या सिल्वर आपके घर में बर्तन होंगे तो वो ब्लैक हो जाते हैं, तो वो एयर में क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, उसकी वजह से सिल्वर के, या पायल अगर आपकी मम्मियाँ पहनती हैं तो वो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाती है, काली पड़ने लगती हैं, थोड़ी थोड़ी ग्रेइश हो जाती हैं। सो दैट इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ केमिकल्स ऑन देम। या कॉपर ग्रीनिंग, आप अगर आपके घर में तांबे के बर्तन हो तो आप देखोगे उसमें एक ग्रीन लेयर अंदर अंदर जमने लगती है। सो दैट इज़ कोरोजन। तो कोरोजन ऑफ मेटल्स wherein the metals are slowly eaten away by the action of air, moisture और chemicals on their surface। अब ये metals को डैमेज करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को वीक कर देते हैं। ठीक है, तो इनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, समय समय पर हमारे जो आयरन के चीज़ें होती हैं उनको पेंट करते हैं, या सिल्वर की अगर चीज़ है तो उसको साफ़ करते रहते हैं, कॉपर की चीज़ है तो उसको भी हम साफ़ करते हैं, समय समय पे क्लीनिंग करते हैं, या उन पे पॉलिश कर देते हैं, वार्निश कर देते हैं कि वो चीज़ प्रोटेक्टेड रहे एयर और मॉइस्चर से। ठीक है। दूसरी तरफ है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी आपने अगर देखा तो कुछ फ्राइड आइटम्स आपके घर में होते हैं, जैसे चिप्स हो गए या नमकीन हो गया, कुछ भी ऐसा कुछ जो फ्राइड आपने किया हो, तो उनमें से थोड़े समय के बाद क्या होती है कि अनप्लेजेंट स्मेल आने लगती है या उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो वो क्या होता है, उसमें जो खानों में फ़ैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमें एक अजीब सी स्मेल और एक ख़राब टेस्ट, या हम कहते हैं कभी कभी कि ख़राब हो गया है, वो इसी वजह से हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स इसलिए डालते हैं कि वो ऑक्सीडाइज ना हो, या जैसे मम्मियाँ अचार बनाती हैं हमारी तो उसमें ज़्यादा तेल डालती हैं और उसको एयर टाइट कंटेनर में रखती हैं ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो। और जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो चिप्स को ख़राब ना होने दें, उनमें स्मेल ना आए, वरना इतने टाइम तक जो पैक रहता है उसमें स्मेल नहीं आती है, आप कभी भी खोलते हो तो वो फ्रेश जैसा लगता है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन गैस जो उसमें ऐड की जाती है। तो इसको इसीलिए किया जाता है टू प्रिवेंट द स्पॉइलिंग ऑफ फूड। ठीक है। अब हमारी कुछ एनसीईआरटी की प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं। जब वो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स देखेंगे तो उसमें ये बीच बीच में थोड़ी एक्टिविटीज़ रहती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम एयर में बर्न करेंगे तो क्या होता है, और मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से रिमूव करते हैं उसकी ऑक्साइड लेयर को, तो जब वो बर्न करते हैं तो डैजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होता है एंड वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन क्या हमने देखी, डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर इज़ फॉर्म्ड। सेकेंड एक्टिविटीज़ की, जब लेड नाइट्रेट एक मिक्सिंग करते हैं, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन कलरलेस होता है, पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस होता है। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो ये एक वाइब्रेंट येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाते हैं विच इज़ लेड आयोडाइड। तो ये प्रेसिपिटेट जो बनता है, दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वेयर इन टू कलरलेस लिक्विड्स आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ येलो कलर प्रेसिपिटेट। एंड द वेरी फेमस एग्जाम्पल वेयर इन जिंक जो है वो हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है, और उससे क्या होता है, जिंक ग्रेन्यूल्स हम एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और उस पर धीरे धीरे स्लोली हम हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस की बबल्स प्रोड्यूस होती हैं। देयर इज़ अ राइज इन टेम्परेचर दैट वी ऑब्जर्व एंड दैट इज़ कॉल्ड योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एफोविट बबल्स फॉर्म होते हैं जिसको हम एफोविसेंस कहते हैं, और उस टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। सो दिस इज़ अनदर एक्टिविटी दैट हैज़ बीन मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, सो प्लीज़ गो थ्रू देम, क्योंकि ये रिएक्शंस और ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपके बैलेंसिंग के तौर पे भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट टुगेदर, और व्हाई डू वी बर्न मैग्नीशियम रिबन आफ्टर क्लीनिंग। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। Now it's time for you people, you learners to check your understanding कि मैंने जो बताया है वो आपको कितना समझ में आया है। तो उसके लिए मैंने कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। One is your concept check wherein I have put in a question कि why should a magnesium ribbon be cleaned with sandpaper before burning in air। तो वो ऑक्साइड लेयर का बिल्कुल ध्यान रखना कि मैंने क्यों बताया था आपको। सेकंड, मैंने आपको एक बैलेंसिंग की इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन मैंने अपने ही प्रेजेंटेशन से दी है, सो प्लीज़ इसे बिल्कुल गलत मत करना एंड फॉलो ऑल द बैलेंसिंग स्टेप्स।
थर्ड इज़ कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड, एंड वाइट प्रेसिपिटेट किसका बनता है वो भी ज़रूर बताना, और ये किस तरह का रिएक्शन है वो भी बताना, ठीक है, मैंने अलग से बताया था इसके रिएक्शन के बारे में। एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ कि रिडॉक्स चैलेंज, कि इसमें मैंने जो रिएक्शन दी है आपको बताना है कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है। और लास्ट में है एक बोनस चैलेंज जिसमें आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखना है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का और एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्टली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मैंने जो बताया आपको समझ में आया हो थोड़ा भी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।